بلاول کی ابھی ٹریننگ پوری نہیں ہوئی. بلاول مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے مگر تجربہ ہوتا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں بلاول کو بیانات سے نہیں روکوں گا, وہ گھر بیٹھ گیا تو کیا کروں گا. ہمارا بیانیہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا نہیں. آصف علی زرداری نے انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی حکومت سے اتحاد کرنے کو کہا گیا. 6 وزارتوں کی پیشکش کی گئی. جواب دیا 6 وزارتیں کیوں لوں. کہا پی ٹی آئی حکومت مائنہ سرداری پیپلز پارٹی چاہتی تھی, مجھے ملک سے باہر جانے کا کہا گیا. بولے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف عدم اعتماد درست فیصلہ تھا. چیئرمین پی ٹی آئی معیشت کے دشمن تھے, انہیں نہ نکالتے تو ایک فوجی کے ذریعے RO الیکشن کرا کے 2028 تک حکومت بنا لیتے. پھر 1 کلو دودھ کے لیے ٹرک بھر کر پیسے لے جانے پڑتے. اتحادی حکومت کا تجربہ مشکل تھا. بل بنا کے نہیں دیا تھا, لیکن اس کے بننے میں جو یعنی مشاورت کنسلٹیشن ہوئی تو اس میں جو ہے وہ زرداری صاحب کی مرضی, ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ شامل تھی. ایک ڈیسیجن پاور رکھتے تھے وہ. جب بھی کبھی آئے ہیں پرائم منسٹر کے پاس اور جن چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے تو اس میں انہوں نے یا تو تعاون کیا ہے تو یا پھر اپنی بات منوائی ہے. ان دونوں صورتوں کے علاوہ کبھی کوئی صورت ایسی نہیں دیکھی ہم نے 16 ماہ میں کہ ان کو کوئی تنگی محسوس ہوئی ہو, ان کو کوئی ناراضگی محسوس ہوئی ہو, یا ان کو کوئی مایوسی جو ہے وہ ہوئی ہو کہ جی ان کے معاملات میں جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی. اتحادی حکومت میں تمام معاملات مشاورت سے ہوتے تھے. رانا ثناء اللہ کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو. بولے زرداری صاحب کے پاس ڈیسیجن پاور تھی. جب بھی وزیر اعظم کے پاس آتے تھے یا تو تعاون کیا یا تو اپنی بات منوائی. ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا کہ انہیں کوئی ناراضگی یا مایوسی ہوئی ہو. میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتا. سیاست کے لیے جھوٹ بولنا بھی کوئی بات ہے. کیا کھٹیں گے آپ سیاست کے لیے جھوٹ بولیں گے. یہاں تو آپ شاید آپ کو حکومت مل جائے, ادھر جا کے کیا ملے گا آپ کو. عوام کو دھوکہ دیں, غلط باتیں کریں, جھوٹ بولیں اور غلط کمٹمنٹ کریں, غلط وعدے کریں, سبز باغ دکھائیں اور پھر قومی سطح پہ یہ کام کریں. آپ قوم کو دھوکہ دیں اور پھر یہ توقع کریں کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ معاف نہیں کرتا. وزارت عظمیٰ کا لالچ ہے, نہ ذاتی مفاد. سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا. 50 سال سے سن رہے تھے سندھ میں کوئلے کی کانیں ہیں, سندھ میں کوئلے سے بجلی کی پیداوار ہم نے شروع کی. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا مریب میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا 2017 میں ملک پر کلہاڑیوں اور ہتھیاروں سے وار کیا گیا. پی ٹی آئی دور میں تباہی پھیر دی گئی. ہنستے بستے ملک کو خود اجاڑا گیا. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بوجھے نکال دیا گیا. حسد, بغض اور منافقت نے ملک کا کلچر تباہ کر دیا. مگر یہ سوچنا ضروری ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے خلاف سازش کی. ہم سبق نہیں سیکھتے, جو باتیں کہیں سوچ سمجھ کر کہیں ان کو پورا کریں گے. مریم نواز بولی نواز شریف کو 4 سال ملک سے دور رہنا پڑا, موقع ملا تو مری کی تقدیر بدل دیں گے. غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کا آج سے آغاز. جنگ بندی مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے نافذ العمل ہوگی. شمالی غزہ اور غزہ سٹی میں صبح 10 سے شام 4 بجے تک فوجی سرگرمیاں معطل رہیں گی. اسرائیلی طیارے روزانہ 6 گھنٹے کے لیے اپنی پرواز بند کریں گے. ایک یرغمالی کے بدلے فلسطین کے 3 قیدی چھوڑے جائیں گے. آج 13 یرغمالیوں اور 39 فلسطینی قیدیوں کی رہائی متوقع. 24 گھنٹوں میں 200 امدادی ٹرکس کو غزہ میں داخلے کی اجازت ہوگی. حماس جنگ بندی معاہدے میں ثالثی پر قطر اور مصر کے شکر گزار. جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں. خان یونس پر تازہ بمباری میں مزید 15 فلسطینی شہید. غزہ سٹی پر بھی حملہ. جبالیہ اور نصیرات پناہ گزین کیمپس پر بارودوں کی برسات. 29 فلسطینی شہید کر دیے. مغربی کنارے سے مزید 90 فلسطینی گرفتار. حماس کی جوابی کارروائیاں. 11 اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں. لبنان میں اسرائیلی فوج کا حملہ. رکن لبنانی پارلیمنٹ کے بیٹے سمیت 5 افراد شہید. فلسطین میں امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرایا جائے.
सऊदी अरब का मुतालबा, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, गजा में खतरनाक कार्रवाइयाँ जारी हैं, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, गजा में जंग नहीं दहशतगर्दी हो रही है। गजा की तबाहकुन सूरत हाल दुनिया के लिए सबक है। यूनिसेफ ने गजा को बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक इलाका करार दे दिया। हॉलीवुड की इंतहाई नीच हरकत, मारूफ मैक्सिकन अदाकारा को गजा के हक पे पोस्ट करने पर फिल्म से निकाल दिया। मलेशिया को फिल्म स्क्रीम 7 के सीक्वल से निकाला गया। वाशिंगटन के यूनियन स्टेशन के बाहर मुजाहरा, फलस्तीनी शहादा की अलामती मैयतें रखी गईं। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में भी स्कूल के तलबा की बड़ी रैली। फलस्तीनी बच्ची की पुकार ने दुनिया के दिल दहला दिए, कहा उसके खानदान का कोई नहीं बचा। और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे, और ये स्कूल ऑफ होंगे, और ये जितनी ये हम फैसले कर रहे हैं, ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें, बट उसके लिए अभी हमारे बहुत पीछे हैं, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं। लाहौर समेत 25 अजला में तालीमी इदारे आज और कल बंद। मार्केट्स और रेस्टोरेंट 3 बजे खुलेंगे। इतवार को तमाम मार्केट्स और इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। आज सरकारी दफातर खुलेंगे, कल 3 बजे के बाद काम होगा। मॉल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद, सिर्फ साइकिलें चलेंगी। स्मॉग कम करने के लिए निगरान पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन में इतलाक होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, 29 नवंबर को बारिश के लिए मौजू बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। लाहौर में 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। सरकारी मुलाजिमों को भी लीज पर ई बाइक्स दी जाएंगी। सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना करने का फैसला, आवाम से मास्क पहनने की अपील। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई खराब, बीमारियां तेजी से फैलने लगी। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे। पाक फौज पुराज़्म फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों के साथ मुकम्मल ताकत से निपटने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शरका ने कहा, दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। गयूर पाकिस्तानी अवाम पुराज़्म और मुत्तहिद रहें। फोरम का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। भारतीय फोर्सेस की इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। शरका ने फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का असम दोहराया। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का था। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर 2 रियासती हल की मुकम्मल हिमायत करता है। 90 दिन में इंतखाबात की तारीख ना देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक के मुनाफी है। इंतखाबात ना करवा कर अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। आम इंतखाबात केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट में कहा, मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात आईनी तकाजा है। 12 करोड़ 56 लाख से ज़ायद वोटर्स को उनके हक़ राय दही से महरूम किया गया। इंतखाबात में ताख़ीर को रोकने के लिए मुस्तक़बिल में ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। हर अवामी ओहदा रखने वाला आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाता है। 90 दिन में इंतखाबात कराना सदर, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। आवाम के हकूक़ के खिलाफ संगीन अमल है। सियासी जमात बनाना, सियासी जमात का कारकुन होना और इंतखाबात लड़ना आईनी हक है। गवर्नर पंजाब और KP ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। मामले पर ना इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हुआ, ना सदर ने मौसर जिम्मेदारी अदा की। कराची वालों पर बिजलियां गिरा दी गईं कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1.52 रुपए फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज को मंजूर किया। इजाफा सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा।
सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम मुतमईन हैं, नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। कौम ने 4 स्याह बरसों में तबाही का चिल्ला काटा, आसानियों की बहार का मौसम जल्द आएगा। ये भी कहा पायदार अमन तनाज़ा फलस्तीन के मुनसिफाना हल से ही मुमकिन है। पीटीआई को 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म। 20 दिन में इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। 10 जून 2022 का इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर शफाफ करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़िर थे। पार्टी आइन के मुताबिक साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रही। जून के पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया जा सकता। 20 रोज में इलेक्शन ना कराए तो पीटीआई इंतखाबी निशान के साथ पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए नाअहल होगी। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर फिर गिरफ्तार, इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। एंटी करप्शन अदालत ने सुबह ही जमानत पर रिहा किया था। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक असद कैसर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया मालूम नहीं। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता। निगरान वफाकी हुकूमत ने मोनिस इलाही के मुकदमात की तफसीलात शेयर कर दी। मोनिस के रेड वारंट जारी कराने का अमल तेज। मोनिस इलाही पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स पहले ही फ्रीज हो चुके। मुंजमद जायदादों की तफसीलात भी सामने आ गई। लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट सील। मजमूई तौर पर 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मुंजमद की गई। कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 जायदाद शामिल। पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध में हुक्मरान है, लेकिन कुछ नहीं किया। हमारे जमाने में खुशहाली थी, सड़कें बन रही थीं, लाइटें लग रही थीं, स्टेडियम बन रहे थे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कुरंगी में तकरीब से खिताब, कहा आइन और कानून के तहत जालिम का मुकाबला कर रहे हैं। ये हमारे हुकूक की जिदोजहद है, घरों से निकलना बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के दावे की तरदीद कर दी। साबिक वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में कोयले से बिजली की पैदावार पीपल्स पार्टी ने शुरू की। कोयले से बिजली की पैदावार का 5% क्रेडिट नवाज शरीफ का है। पीपल्स पार्टी ने 1993 में थरकोल अथॉरिटी बनाई। एहसन इकबाल का जवाबी वार, जिस थर मंसूबे का पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है वो सिर्फ कागजों में था। पीपल्स पार्टी के तीनों अदवार में इस पर अमल नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने इसे सीपैक में शामिल कराया। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज तर। पोलिंग ड्यूटी के लिए मुलाजिमीन की फहरिस्तें तलब। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुलाजिमीन की फहरिस्तें मांगी। मुरासले में कहा गया आम इंतखाबात के लिए 10 लाख पोलिंग स्टाफ की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया करेगा। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इजलास में ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का कसामार सिराजुल हक कहते हैं पूरा फलस्तीन कब्रिस्तान बना दिया गया। जालिमों को सजा दी जाए, पूरी दुनिया गजा के साथ है। हमारे हुक्मरान बुज़दिली की तस्वीर बने हुए हैं। मुसलमान हुक्मरानों को तारीख माफ नहीं करेगी। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना मुकम्मल तौर पर सेहतियाब। जनरल अस्पताल लाहौर ने वीडियो जारी कर दी। 15 साल रिजवाना को बहुत जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लड़की 4-5 अस्पताल में जेर इलाज रही। रिजवाना के वालिदैन का वज़ीर आला पंजाब और जनरल अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया। लाहौर में गाड़ी से 6 अफराद की हलाकत का मामला। अदालत ने मुलजिम अफनान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। मुलजिम की उम्र के तयन के लिए दांतों का टेस्ट करा लिया गया। हड्डियों का टेस्ट भी होगा। पुलिस ने कैमरे के शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए।
मुलजिम के फ्लैट के बाहर लगे कैमरे की वीडियो मिल गई। पाक फसाई की पहली शहीद खातून फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार की शहादत को 8 वर्ष बीत गए। सिंध में नासुक होने के बावजूद मरियम मुख्तियार ने जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 48 घंटे में एक और वादा पूरा कर दिया। दाता दरबार पर 24 घंटे लंगर का आगाज हो गया। वज़ीर आला की अकीदतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास बुजुर्गान दीन के 9 मिज़ारों की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त ब्रीफिंग। कौमी क्रिकेटर इमाम उल हक की शादी तकरीबात का आगाज हो गया। लाहौर के निजी फार्म हाउस में कवाली नाइट का एहतमाम। इंजमाम उल हक, कामरान अकमल, उस्मान कादिर, वहाब रियाज की शिरकत। बाबर आजम, सरफराज नवाज की इस्लामाबाद से खसूसी आमद। इमाम उल हक नॉर्वे में मुकीम अनमोल महमूद से शादी के बंधन में बंध रहे हैं। और 5 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा को मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। स्टेज, टीवी और फिल्म में यादगार किरदार निभाए। असल शोहरत मशहूर ड्रामे 50-50 से मिली, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।